Bismillahirrahmanirrahim. I am Ramzan Sumaro, Assistant Professor, Government Degree Boys College, Gulistan Ijwar, Karachi. Today, this is my second lecture for Inter-Commerce class as well as for BCom Part 1. Today, we will discuss about the chapter Measure of Central Tendency. Measurement of the values which have attained toward the center, or we call it as averages. An average is a single value which is intended to represent the set of data. Average means equal division of loss or profit among the interested partners. Most important types of averages are arithmetic mean, median, and mode. Mean is a value where distribution is balanced. Median is a value which divides the distribution into halves. Mode is most repeated value in the distribution. For example, there are three partners. First on rupees 500, second on rupees 50, and third on rupees 5. Arithmetic mean will give them equal share, that is 185 rupees. This is one of the important measure of central tendency. Median divide the set of data when data is arranged in ascending or descending form. So median is a mid value. If a line is divided in two parts, mid value is called as median. In daily life, we have model shoe. We use mode girl. It means that most beautiful or fashionable thing is called as mode. This is comparison of the three averages. If mean greater than median greater than mode, the distribution is right skewed, right symmetrical. If mean equal to median is equal to mode, the distribution is symmetrical or normal. If mean is less than median less than mode, then distribution is left skewed. This formula is empirical formula. When we are given two averages, we find third one. Mean minus mode is equal to 3, mean minus mode, median. So from this formula, mean minus mode is equal to 3, mean minus median. If we have to find a mode, we change the formula as 3 median minus 3. जो हमें कैलकुलेट करना होगा इस फार्मूले से हम उसको बाहर निकालेंगे, बाकी इस तरीके से नया फार्मूला बना देंगे. Mean is defined as the sum of all observation divided by the number of observation, maybe population mean and sample mean. अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशन x1, x2 अप टू xn है, तो मीन मालूम करने के लिए सबसे पहले हम इन सब ऑब्जर्वेशन को प्लस करेंगे और नंबर से डिवाइड करेंगे. इन मीन के लिए दो सिंबल हम यूज करते हैं. अगर क्वेश्चन में पॉपुलेशन लिखा होता है तो हम उसको म्यू से डिनोट करते हैं. अगर ये सैंपल लिखा होता है तो हम इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं. समीशन एक्स अपॉन एन, टोटल एक्स का, जिसको हम एन से डिवाइड करेंगे तो अर्थमेटिक मीन मिल जाएगी. Median is a value which divides ordered set of data into equal parts or below 50% of the ordered data lie. Median is equal to size of n upon 2th atom. Median is equal to size of n plus 1 upon 2th atom when it is odd numbers and for even numbers. For group data, we use the formula for median. Mode is a value which occurs most frequent or most repeated in the set of data. Mode can be picked out by inspection in group data. जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी वो वैल्यू हमारी मोड हो जाएगी और ग्रुप डेटा के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे. We have three types of tables.
इंडिविजुअल डेटा, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूअस डेटा। ये 3 टेबल हमें मिली हुई हैं। तीनों टेबल में से कैलकुलेशन आती है, हमें टेबल्स बनानी नहीं है, जो टेबल मिलेगी हम उसमें से कैलकुलेट कर लेंगे। और दूसरा ये कि जो पूछेगा वो कैलकुलेट करेंगे। जैसे यहाँ कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तीनों कैलकुलेट करनी है तो तीनों कैलकुलेट करेंगे, अगर 2 करनी है तो 2 करेंगे। तरीके से इसकी कैलकुलेशन अलग अलग है। सबसे पहले इंडिविजुअल डेटा में से मीन कैलकुलेट करने के लिए जो हमें वैल्यूज मिले हुए हैं उन सब वैल्यूज को हम प्लस करेंगे और उसके बाद हम उसको जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड कर देंगे। टोटल 15 नंबर हैं, हमने सब ऑब्जर्वेशन को प्लस किया, 15 से डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिल गई 17.47। मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज को हम अरेंज करेंगे, देन चेक करेंगे कि इन ऑड नंबर है इवन नंबर है। इसके बाद फार्मूला साइज ऑफ n प्लस 1/2 लगाया, n की वैल्यू 15 डाली, इसको 2 से डिवाइड किया तो 8 वैल्यू आई। 8th वैल्यू हम वैल्यूज में जाएंगे जहां पे हमारा 8 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीडियन हमारी 20 हो जाएगी। तरीके से मोड कैलकुलेट करने के लिए हम इंडिविजुअल डेटा को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने इसको फ्रीक्वेंसी में चेंज किया कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा आएगी वो हमारी मोड हो जाएगी। इसलिए 20 फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसलिए हमारे पास 20 मोड है। दूसरा क्वेश्चन है मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना है डिस्क्रीट डेटा में से। डिस्क्रीट डेटा में XF हमें मिला हुआ है। हम सबसे पहले मीन के लिए कॉलम बनाएंगे F इंडेक्स का और मीडियन के लिए बनाएंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। x को f से मल्टीप्लाई किया, fx बना, इसका टोटल किया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले सेम रखते हैं, फिर दूसरी ऐड करेंगे, फिर दूसरी ऐड करेंगे, इस तरीके से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेंगे जो आपको बनानी आती है। मीडियन का फार्मूला xf अपॉन n, इसका fx का टोटल लिखा, टोटल फ्रीक्वेंसी 31 से डिवाइड किया तो मीन में कैलकुलेट हो जाएगी। मीडियन इसमें फ्रीक्वेंसी में हम डायरेक्ट n/2 मालूम रखते हैं, इसीलिए n की वैल्यू हमने 31 डाली, 2 से डिवाइड किया, 15.5 आया। 15.5 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 16 में, और इसके बाद जो हमारी मीडियन हो जाएगी इसकी x की वैल्यू आ जाएगी 40। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखी हमने, वो फ्रीक्वेंसी 40 की है, इसीलिए मोड हमारा 40 है। तीसरी डेटा हमारे पास मीन, मीडियन, मोड कैलकुलेट करना है कंटिन्यूअस में। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस डेटा में से हम मिड पॉइंट बनाएंगे और मिड पॉइंट बनाने के बाद x मिल जाएगी, x को हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हमें fx बन जाएगी। fx का टोटल करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे मीडियन के लिए और मोड का फार्मूला यूज करेंगे। अर्थमेटिक मीन समीशन fx अपॉन n कर दिया, fx का टोटल लिखा, n 100 से डिवाइड किया तो हमें मीन मिल गई। मीडियन मालूम करने के लिए डायरेक्ट हमने पहले n/2 फार्मूला यूज किया, n/2 100/2 हो गया, 50 हो गई, 50 हमारा 70 में आया। इसके बाद हमें क्लास मिला, क्लास फाइंड करने के बाद 29.5 to 39.5 आया। हमने मीडियन का फार्मूला अप्लाई किया और इसके बाद हमने मीडियन की वैल्यू आई 34.5। मोड के लिए भी ये करेंगे, सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखेंगे जो कि क्लास है 29.39.5 तक। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई, इसको मॉडल क्लास बोलेंगे। मॉडल क्लास का फार्मूला अप्लाई किया और इसकी फ्रीक्वेंसी 3 फ्रीक्वेंसी होती है, एक मॉडल FM क्लास की फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास है और एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। F1 ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, एक ऊपर वाले F1, F2 जो है वो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से फार्मूला में वैल्यू डालेंगे तो मोड मिल जाएगा। इसका रिलेशन भी हम मालूम करेंगे। आपको मैं पहले बता गया कि 3 किस्म का रिलेशन है। अगर ये कहता है कमेंस द रिजल्ट
तो हम इसका जवाब लिखेंगे। हमने देखेंगे कि मीन, मीडियन, मोड का रिजल्ट कैसा आ रहा है, तीनों बराबर हैं, लेफ्ट स्क्यू है, राइट स्क्यू है। तो यहाँ पर मीन की वैल्यू आई है 35, मीडियन की 34 कम हुई और इससे कम हुई, तो ये हमारी वैल्यू आ गई और ये पॉजिटिवली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। मीडियन और मोड का ग्राफ बनाना है। सबसे पहले मीडियन का ग्राफ बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई। क्लास बाउंड्रीज हम एक्स एक्सिस पे रखेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे रखेंगे। इसका हम कम्युलेटिव का ओगाई ग्राफ बनाएंगे। इस ग्राफ के बाद हम जाएंगे n/2 में। n/2 जो हमने निकाला है वो यहाँ से जो वैल्यू आई वो यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा करनी है, जहाँ ग्राफ को कटेगा उस ग्राफ के नीचे पॉइंट ले लेंगे, सीधी लाइन लगाएंगे तो ये हमारा मीडियन आ जाएगा। इस तरीके से मोड बनाने के लिए हम सबसे पहले हिस्टोग्राम बनाएंगे। हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्लास बाउंड्रीज एक्स एक्सिस पे रखेंगे, फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे रखेंगे। इस तरीके से हिस्टोग्राम बन जाएगा। जो इसमें हायर रेक्टेंगल है उसकी कोनों को मिलाएंगे, तो जहां ये कट करेंगे उसको नीचे ले आएंगे तो ये मोड की वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से ग्राफिकली भी आता है कि मीडियन और मोड कैलकुलेट करें। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन बनाएं। प्रॉपर्टीज ऑफ मीन बनाने के लिए हमें एक्स मिलता है। सबसे पहले हम इसकी मीन निकालते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन से और एक्स में से मीन माइनस करते हैं, डीएक्स बनाते हैं। डीएक्स का टोटल 0 आता है, तो क्वेश्चन होता है सिग्मा डीएक्स इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन इज 0। ये प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी होती है। एक फंक्शन आता है, एक्स की वैल्यू हमें दी होती है 10, 15, 30, 35। फाइंड y बार, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। इस तरीके से हम इसको दो तरीकों से हल करते हैं। या तो हम y क्रिएट करते हैं, नया वेरिएबल x प्लस फाइव, x की वैल्यू में 5 प्लस करते जाएंगे तो नया वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, उसकी टोटल करेंगे, उसके मीन निकाल देंगे। एक तरीका तो ये है। या फिर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, तो y को बार लगेगी तो x को भी बार लग जाएगी। इस तरीके से x बार जो आपने निकाली है उसमें वैल्यू डालेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। इस तरीके से भी हम y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। एक कंबाइंड मीन का क्वेश्चन आता है कि वन ग्रुप ऑफ 10 men have एवरेज वेज ऑफ ₹30, एवरेज वेज ऑफ ₹50 per hour, and other group of 50 men एवरेज ऑफ ₹60 per hour. Find the combined mean of the both of the groups. इसमें हमें ये बोलता है कि एक ग्रुप की मीन मिली होती है, दूसरे ग्रुप की मीन होती है और हमें कंबाइंड मीन बनानी होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं n1 का और n2 का। n1 की वैल्यू रखेंगे, x बार की वैल्यू रखेंगे, n2 की वैल्यू रखेंगे, x बार 2 की वैल्यू रखेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, n1 n2 की वैल्यू डालेंगे, तरीके से हमें कंबाइंड मीन मिल जाएगी। एम्पिरिकल रिलेशन मालूम करने के लिए दो कैलकुलेशन हमें मिलती हैं, मीडियन भी मिला हुआ है, मोड भी मिला हुआ है। इस फार्मूले में हम रखेंगे तो मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करना है तो मीडियन का फार्मूला बनाया हमने, इसमें दोनों वैल्यू डाल दी, हमें मीडियन की वैल्यू आ गई 20। तो यहाँ पे कोई भी एक पूछेगा, दो की वैल्यू दे देगा, तो आप इस फार्मूले में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। एक मिसिंग वैल्यू आती है अर्थमेटिक मीन में। फाइंड द इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसमें हम ये करते हैं कि सिग्मा एक्स का फार्मूला लगाते हैं और इस तरीके से एक्स बार की वैल्यू डाली, जो वैल्यू नहीं है उसकी हमने के डाल दी। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया तो के की वैल्यू निकल आई 21। इन दिस वे हम मिसिंग वैल्यू अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। अगर कोई सीरीज में से कोई डेटा मिस हो गई है तो हम उसको भी फाइंड कर सकते हैं। ये हमारी मोटिवेशन है, तरीके से क्वेश्चन है जो आपको याद करना है। Thank you.